یہ جتنی بکواس جتنی گالیاں دیں گے ہمارا عزم اتنا ہی جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ جو نام لیتا ہے کہ جی میں آزادی کر رہا ہوں، کون سی آزادی؟ IMF کے آگے تم نے سرنڈر کر دیا تھا، پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا سودا کر دیا تھا، صبح سے شام تک سوائے چندے اکٹھے کرنے کے اور چندے مانگنے کے کام نہیں کیا۔ پاکستان کا کوئی دوست ملک ایسا نہیں چھوڑا جس کے پاس کشکول لے کر نہیں گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران نیازی صاحب کی سربراہی میں ہوئی ہے، اور اسی طرح جو ملک کو خارجی میدان میں چیلنجز درپیش ہیں، یہ سب کو جو ہمیں ورثے میں ملا ہے، اس کے حوالے سے قائد جناب نواز شریف صاحب جو اس وقت پاکستان کے سینئر ترین اسٹیٹسمین ہیں، جن کا تجربہ پاکستان کے حوالے سے ہم سب سے بہت زیادہ ہے، ان سے ہم مشاورت کریں، ہم ان کی رہنمائی لیں، تاکہ آنے والے دنوں میں حکومت تیز رفتاری کے ساتھ ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات اٹھا سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، اس پر قومی قیادت کو بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی فیصلے ہیں وہ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مشاورت اور اتفاق رائے کے ساتھ ہوں۔ جو ہماری مشاورت ہوئی ہے، ہم اس کی روشنی میں کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں گے، اور یہ مخلوط حکومت انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کو موجودہ بحرانی صورتحال سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ بتائیے کہ آج کی میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا؟ دیکھیں جو ڈسکشن ہوئی ہے، میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ہماری پارٹی کے رہنما ہیں، اور ان سے جو موجودہ صورتحال درپیش ہے ملک کو، قوم کو اور حکومت کو، اور جس طرح سے اس بے شرم آدمی نے جو گند پھیلایا ہے 3.5-4 سالوں میں، تو اس سے متعلق جو ہے وہ جو پالیسی لائن، جو ویژن جو ہے وہ لیڈرشپ سے گورنمنٹ کو درکار تھا، اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے بطور پارٹی لیڈر انہوں نے جو ویژن، جو سوچ ہمیں دی ہے، اس کو ہم، کیونکہ اتحادی حکومت ہے، ہم باقی اتحادیوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ گند جو ہے، اس نے جو جس طرح سے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے، اور ہماری سیاسی روایات کا جو ہے اس نے بٹھایا ہے، جس طرح سے یہ آدمی واحیاتی کا، بدتمیزی کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہا ہے، یہ پوری قوم کو جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، یہ قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کو گمراہ کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے بطور لیڈر ہماری بہت بہتر اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، اور ان کی رہنمائی کے تحت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ یہ پالیسی جو ہیں، یہ اتحادی جو ہمارے ہیں ان سے بھی ان کو اپروو کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو آئین شکن میاں نواز شریف صاحب کی واضح پالیسی ہے کہ جس نے بھی آئین شکنی کی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جو ملک کا قانون اور جو آئینی تقاضے ہیں جو ان کو ہے وہ پورا کیا جائے، زیرو ٹالرنس جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ رکھی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افراتفری اور جو ہے انارکی پھیلانا چاہتا ہے ملک میں، اس کی قطعاً جو ہے وہ اس کو اجازت جو ہے دیکھیں، میں نے جب کہا ہے کہ وہ تمام قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہوگی، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس کی گرفتاری بنتی ہوئی اس کو بالکل گرفتار کریں گے۔ دیکھیں اس بارے میں یہاں پہ بات ہوئی ہے، اور جو یہ انارکی اور افراتفری کے لیے جو ہے یہ اسلام آباد میں لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، لیکن کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے،
कैबिनेट में हम सब के सामने ये मामला रखेंगे, और अगर ये कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनको हमने वहाँ पे नहीं आने देना, तो जो है वो 20 लाख बहुत दूर की बात है, 20 लोग नहीं आएंगे वहाँ। ये जो है ना शेख रशीद, ये भी नहीं आएगा वहाँ पे। देखें, इस वक्त जो है वो फैसला यही है कि हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन देखें ये फैसला जो है ये PMLN के हाथ में नहीं है। ये फैसला जो है ये इत्तेहादी जो हैं हमारे, उनका जो सरबराही जो उनका है उन फोरम, उसके हाथ में है। अगर वो हमें कहेंगे कि आप पहले करवा दें, पहले हो जाएंगे, अगर कहें मुद्दत पूरी करनी तो मुद्दत पूरी होगी। ये फैसला जो है इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहों का फोरम है उसके पास है, ये PMLN के पास नहीं है। एक मिनट, ऐसे नहीं हो सकता। एक सेकंड आप बात करें। राणा साहब इनसे सवाल लेते हैं। जी। राणा साहब, DG ISPR का आज बयान आया, उन्होंने कहा कि फौज को सियासत में मत घसीटे। हमने बार इस चीज़ का जिक्र किया है, तो सियासी कायदीन के लिए उनका आया है बयान, जो जरदारी साहब ने स्पेशली कल कोर कमांडर पेशावर के लिए बयान दिया था, उसके बाद हमारी तो पार्टी का जो है वो जदोजहद ही ये है। हमारे कायद का तो बयानिया ही ये है कि अदारे जो हैं वो सियासत में ना हिस्सा लें, ना उनको सियासत में जब घसीटा जाए। और हम तो इस बात के ऊपर बहुत इंस्पायर हैं कि अब अदलिया ने भी और दूसरे अदारों ने भी इस मौके के ऊपर जो है एक ऐसा किरदार अदा किया है कि उन्होंने कत्तन जो है वो कोई सियासी मुदाखलत नहीं हुई। इसी बात के ऊपर जो है वो उनके खिलाफ बातें हो रही हैं जो कि गलत है, और हम उनको डिफेंड जी। आप सवाल करें। राणा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की मुशावरत में क्या मुल्क को इकनॉमिकल जो सूरत हाल है उसकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए IMF के पास जाने का फैसला हुआ है या नहीं? जी, IMF के पास तो आप पहले से गए हुए हैं। ये फैसला ज़रूर हुआ है कि इकोनॉमी की सूरत हाल जो है, जो कि बहुत मुश्किल है, उसको दुरुस्त भी करना है, लेकिन ये गंद जो इसने डाला है ना, इस गंद को एक्सपोज भी करना है, लोगों को बताना है। जी मुर्तज़ा जी। अच्छा, एक मिनट आदेश सबको दूंगी। मुर्तज़ा आप बात करें। जी, फैसला किया गया है कि नहीं किया? क्या एक ही जी? सवाल करें ना। साहब की पाकिस्तान आने के लिए जी, पाकिस्तान मियाँ साहब का है। मियाँ साहब से वहाँ पे पूरी कौम मोहब्बत करती है। मियाँ साहब हर कीमत पे वापस जाएंगे, वो जाना चाहते हैं। मुर्तज़ा बात करें। फवाद चौधरी साहब ने एक जलसे में मुतालबा किया था कि आर्मी जो है ना, उन्होंने कहा था कि चौकीदार इंतखाबात कराए। आज DG ISPR ने कहा है कि वो ऐसे किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? जी, DG ISPR का बयान जो है ये बिल्कुल जो है वो कौमी तकाज़ों के मुताबिक है, उन्हें बिल्कुल हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और फवाद चौधरी ने जो हद तक अमेज़ और तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये कौसर साहब। राणा साहब, आपने कहा कि ये भी कल का जो खबर सामने आई कि इस बात पे भी मुशावरत हुई है कि केसेस सामने लाए जाएंगे जो साबका हुकूमत थी उनके करप्शन के केसेस के हवाले से, तो क्या कुछ ऐसे शवाहिद सबूत आपके हाथ लग चुके हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है? केसेस नहीं, गंद सामने लाया जाएगा। केसेस तो बहुत छोटी चीज़ है, जो ये करके गए हैं 3.5 साल पौने 4 साल जो है वो कौम के साथ, वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल उनको आवाम के सामने जी। आप बात। राणा साहब, कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर अर्ली इलेक्शन कराने के पहले मूड में थी, जब से जरदारी साहब ने समझाया उसके बाद जो है वो प्लान चेंज हुआ है। नहीं, देखिए बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये बड़ा वाज़ेह स्टांस रहा है कि इलेक्शन जो है वो अर्ली होने चाहिए या इस हुकूमत को गिरा के इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये फैसला मुस्लिम लीग नून के पास है नहीं। ये फैसला जो है वो उस फोरम के पास है जिसमें तमाम सरबराह हैं, हम उसके पाबंद हैं। वहाँ पे कंसेंसस के साथ या अक्सरियत से जो फैसला होगा हम उसके पाबंद हैं। सोशल मीडिया पर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरह यकतरफा ट्रैफिक चल रही है और ख़ास तौर पे एक बयानिए को मुसलसल किया जा रहा है और जिस तरह आप पे तनकीद हो रही है या जिस तरह की मतलब एक जो जितना हो सकता हो रहा है, क्या आप गालियाँ दे रहे हैं और गालियाँ मतलब जो भी है, तो क्या सोशल मीडिया के कवानीन कोई हैं पाकिस्तान में या आप लोग देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये जितनी बकवास जितनी गालियाँ देंगे हमारा अज़म उतना ही जो है वो मजबूत होगा। असद साहब। और बाकी ये बात लाज की, तो वो साइबर क्राइम जो है वो हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि इन लोगों को रेगुलेट किया जाए। ये सिर्फ सियासतदानों का मसला नहीं है,
आम आदमी लोग जो हैं वो बहुत यूट्यूबर्स जो है वो कुछ यूट्यूबर भी बारी बारी हाँ बिल्कुल वो सब खुली छुट्टी है या नहीं कोई खुली छुट्टी नहीं है राणा साहब जिस साबका हुकूमतों ने सियासी मुकदमात कायम किए हैं, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी बल्कि सहाफ़ियों पर भी और दीगर जमातों के अहदेदारों पर भी जो सियासी मुकदमात हैं उनको आप किस तरह से ख़त्म करेंगे? क्या हुकूमत ने इस बारे में कोई गौर किया? देखिए इन अकॉर्डेंस विद लॉ ही ख़त्म करेंगे, लेकिन ये है कि इसके बारे में हम जो वहाँ पे तंजीमें हैं उनके जो आपके नुमाइंदे हैं उनके साथ हमारा रब्ता है। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक जो है हम उसके ऊपर कोई 92 एक मिनट जी, 92 एक सिर्फ मैं इसमें ऐड कर दूं, देखिए एक मिनट इसके बाद कर देखिए हमारा ये बहुत मजबूत अज़म है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान नियाज़ी जिसके इशारे पर भी और यकीनन जो एजेंडा इमरान नियाज़ी इस वक्त आगे लेकर जा रहा है वो मुल्क दोस्ती का नहीं, वो मुल्क दुश्मनी का है कि पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के आइन को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है और झूठी तकरीरों से सुबह झूठ, दोपहर को झूठ और शाम को झूठ, और सुबह आइन शिकनी, दोपहर को आइन शिकनी और शाम को आइन शिकनी। इस मकरू धंधे को हम पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं कर सकते, चूँकि पाकिस्तानी रियासत हमारी सबकी मुश्तरका रियासत है और हम किसी एक ऐसे शख्स को जो अपना इक़्तिदार खो जाने की वजह से हवास बाख्ता हो गया है, नफ्सियाती मरीज़ बन गया है, वो मुल्क में इनारकी फैलाकर इदारों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चला के अपनी सियासत में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से इस पाकिस्तान दुश्मन मुहिम का जो नाम लेता है कि जी मैं आज़ादी कर रहा हूँ, कौन सी आज़ादी कि मैंने हमेशा सबकी आंखों में आंखें डाल के बात की। भाई तुम्हारी आंखें उस वक्त कहाँ सैर करने गई हुई थी जब IMF के आगे तुमने सरेंडर कर दिया था, गरीब अवाम का मफाद पाकिस्तान का स्टेट बैंक का सौदा कर दिया था। किस मुंह के साथ कहते हो कि मैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मुहाफ़िज़ हूँ? जो शख्स दावे करता है कि मैंने आज तक किसी से भीख नहीं मांगी, सुबह से शाम तक सवाए चंदे इकट्ठे करने के और चंदे मांगने के काम नहीं किया, पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क ऐसा नहीं छोड़ा जिसके पास कशकोल लेकर नहीं गया, तो किसको धोखा दे रहे हैं? 2 दिन में क्या तय किया? जी बिल्कुल इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नुमाइंदगी का बंदोबस्त करेंगे, उसका कोई ज़रूर इंतज़ाम करेंगे, लेकिन वो EVM जो है वो उड़ा देंगे। कासिम साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने पंजाब के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा तरक्याती और रिकॉर्ड काम करवाए, वो तो आइन में लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए, वहाँ पर कुछ इलाके महरूम रह गए, जैसे तहसील पिंड सबकी वहाँ पर एक पुल था 3 जिला को मिलाने के लिए, उसके फंड रोक लिए गए। सर क्या वो दोबारा शुरू हो सकती है? फराक को लाएंगे और इन दोनों को फिर बनाएंगे, एक ही जगह पे बंद करेंगे। राणा साहब ओवरसीज वोट का EVM मशीन खत्म किया है, EVM खत्म करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है उनकी बहरहाल नुमाइंदगी बनती है, उसका कोई तरीकाकार जो है वो बनाएंगे। देखिए हमने जो अपनी हिकमत अमली तय की है वो आप आइंदा दिनों में वो सारा देखेंगे, लेकिन जो भी कोई हमारा फैसला होगा वो हम यकतरफा नहीं करेंगे जब तक हम तमाम, जैसे राणा साहब ने भी कहा कि हमारी इत्तेहादी जमातें और उनके कायदीन उनकी मुशावरत से और इत्तफाक राय से हम हमेशा तमाम फैसले करते हैं और ये एक मुसलसल अमल है। जो मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर भी सब कायदीन मुसलसल मुशावरत करते हैं और जो भी फैसले होंगे वो इस कोलिशन गवर्नमेंट की क़यादत मिलकर करेगी। तो अभी तो कुछ नहीं तय हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर बनाने को ओहदा दे रहे हैं या नहीं? क्या वो मनसूबे शुरू किए जाएंगे दोबारा? आपने मुझे फैमिली में 3 दफ़ा जो है ना सीखा, लेकिन सर आपने कितने लोगों को दिया साइन? राणा साहब आ जाएं। वो अपनाएंगे। राणा साहब तय क्या हुआ है? 2 दिन आपकी मुलाकातें रही, फैसला क्या हुआ है? देखिए हमने गाइडेंस ली है, रहनुमाई ली है, फैसले तो कोलिशन गवर्नमेंट के जो है वो तमाम कोलिशन पार्टनर के साथ मिलके होंगे।
राणा साहब ये गाइडेंस तो पाकिस्तान वीडियो लिंक से भी ली जा सकती है, तो फिर ऐसे क्या हो गया? कुछ बातें ऐसी हैं कि जो फेस टू फेस हो सकती हैं, वीडियो लिंक पे सारी बातें नहीं हो ये कहते हैं कि सकती। खर्चा जो है वो वैसे सरकारी खर्चा। हमारा अपना इरादा भी था कि हम फेस टू फेस मिलें और बात करें। कोई एक पैसा सरकारी टूर का खर्चा सरकारी नहीं है। एक पैसा नहीं, हम अपने टिकट और अपने मौलाना पैसों फजल से रहमान का ठहरे क्या हुए। सर, वो नहीं, जो खामोश क्यों कोई है? एक पैसा जो है वो सरकारी खर्च पे सरकारी खर्च